Hello students, welcome back to PSM Pulse. I am your guide Dr. Chetan Sharma. If you have watched our first part on national health programs, you have now complete map of all health program related to communicable diseases like NTEP, NLEP, IDSP. Today in part 2 we will be discussing on health programs related to non-communicable disease or child health or nutrition related health programs where most of the students get confused among the year, among the target organs, among the beneficiaries. But after watching this video, trust me, you will have absolute clarity. Pure exam material elimination, no wasting time, no fluff. Let's go. Let me start with a question. Suppose you are a medical officer posted at some XYZ PHC, and in your PHC, some patient of age 45 years comes to the OPD. He is overweight, have a family history of diabetes. Okay, the health worker screen him for the diabetes. No appointment, no referral, no nothing, a prescription written. He simply screen him for the diabetes. What program provide this facility? Yes, the answer is NPCDCS. National Program for Control of Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke, launched in 2010 to 2011. Let me say that again. This program was launched in 2010 to 2011. Okay, not like NHM, which was launched in 2005. Okay, the FMGE 2021 asked this straightway question. Okay, in India, 60% of people are affected directly or indirectly with non-communicable diseases. That's why government launched one program to cover all four major non-communicable diseases and named it as NPCDCS. Okay, the strategy is simple. What is the strategy here? Opportunistic स्क्रीनिंग. व्हाट इज अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग? पेशेंट किसी भी चीज़ को लेकर के आपके पीएचसी पर आता है, आपने उसको एनसीडी के लिए स्क्रीन करना है. दैट इज. अब स्क्रीनिंग मतलब कैसे स्क्रीनिंग? कोई बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं. जैसे ओरल कैंसर है, ओरल कैंसर के लिए आपने विजुअल इंस्पेक्शन करना है, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ओरल कैविटी. देन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपने क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर लेना है. देन फॉर सर्वाइकल कैंसर आपने VIA, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड. ये क्वेश्चन था INICT का. INICET में दिस वाज द क्वेश्चन appeared. This is your exam trap. India's national program uses VIA for cervical cancer screening, not pap smear. Okay, pap smear नहीं करता है अपना हेल्थ प्रोग्राम, VIA करता है. ओके, एनसीडी प्रोग्राम में VIA है, याद रखना. और देयर इज वन मोर इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन पॉइंट आई मस्ट से, कि NPCDCS को NTEP के साथ में इंटीग्रेट किया गया है. ओके, क्यों? क्योंकि टीबी और डायबिटीज ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप में आते हैं. बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि टीबी जो है वो डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ाती है, और डायबिटीज़ जो है वो टीबी के आउटकम को वर्सन करता है. ओके. So bi-directional screening program was piloted first in 3 districts, then it was expanded. Okay. So when you see a question about TB diabetes screening program, it is under NPCDCS and NTEP integration. Okay. So here is the table for you. Full name: National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke, launched in 2010 to 11. 60% of deaths in India is due to or directly or indirectly related to NCDs. इंटीग्रेशन है RNTCP और NPCDCS का. अब RNTCP का नाम चेंज हो चुका है, NTP हो चुका है. ओके. कैंसर फोकस हुआ है ओरल, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर के ऊपर में. हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डिटेक्शन, रेफरल एंड मैनेजमेंट, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसके. एज वी डिस्कस्ड एग्जाम टैप NPCDCS का 2010-2011, प्लीज रिमेंबर दैट. ओके. Now NCD screening we have also discussed regarding cancer screening. In oral cancer, visual inspection is there. Target group कौन होगा? 30+ years of age group और tobacco users. Okay. सर्वाइकल विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, 30 to 65 ईयर्स ऑफ एज की वुमेन होगी. ठीक है. ये प्राइमरी मेथड है स्क्रीनिंग का. देन ब्रेस्ट कैंसर के लिए CBE इज देयर. ओके. ब्रेस्ट कैंसर के लिए CBE इज देयर. किसमें? ऑल 30+ ईयर्स की वुमेन में. नाउ 3 चीजें हैं. क्या क्या? NMHP 1982. Okay. Then DMHP 1996. बेलारी पॉइंट के हिसाब से बेलारी पायलट प्रोजेक्ट. ओके. देन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट in 2017. Most of the program we studied today, it was oldest among all this. Okay. Then this program recognized something very important lacuna, that is mental health disorders are major public health concern, but access to mental health services is very limited. Even nowadays it is also very limited. Okay. So in 1996, government launched district mental health program. In 1996, after 14 years of launching national mental health program, government launched NMHP 1996 in Bellary district of Karnataka. So it is also known as Bellary model. Okay. These three together are the PYQs: the Mental Health Care Act, the NMHP and DMHP. These are the PYQ in FMGE examination. Okay. In FMGE examination. So the idea was to bring mental health specialist at district level in Bellary project, Bellary model. Okay. So to create a district mental health team, district mental health team, to promote community based care. Okay. So now we will discuss the legal framework. Mental Health Care Act was passed in 2017. There is one exam trap straight away coming towards you. Please listen carefully. Mental Health Care Act was passed in 2017. It replaced the old act. There was also one older act, older Mental Health Act, that was launched in 1987. Okay. It was replaced by 2017 Mental Health Care Act.
क्या ज़रूरत पड़ी भाई इसको रिप्लेस करने की, तो उसमें कुछ चेंजेस हुए थे। क्या मेजर चेंज थे देखते हैं अभी अपन। इसमें राइट 2017 वाले में राइट टू मेक एडवांस directives about their treatment। ओके, पेशेंट के पास एडवांस डायरेक्टिव्स को मैनेज करने का, ट्रीट करने का राइट था। फिर राइट टू लिव, सेकेंड राइट टू लिव इन community, and the third right was right of confidentiality, okay, and right to equality। So you must remember these three numbers. National Mental Health Program launched in 1982, then District Mental Health Program launched in 1996, Bellary model, and Mental Health Care Act was launched in 2017, which replaced the old act which was previously launched in 1987। Okay, so all three questions have been appeared in various INICET, NEET PG or FMG examinations straight away। Okay, so here you can see a quick revision for you। 1982 program was launched, DMHP, district mental health programs, Bellary pilot model directly asked in UPSC CMS, Bellary model, then manpower focus on mental health specialist at district level, integration integrated with NHM for primary care mental health delivery। Okay, then there is national suicide prevention strategy, recent addition हुआ है इसमें, और mental health act replaced 1987 in 2017। Okay, again let me ask you a question again। Can you please answer me what is the leading cause of blindness in India? Okay, if you have answered leading cause of blindness in India is trachoma, to my friend you need to update yourself। Today the leading cause of blindness is cataract। 60 to 65% cases of all blindness in India is directly or indirectly related to cataract, and the treatment is IOL, intraocular lens implantation। Okay, no dark glasses, no aphakic spectacles, IOL implantation, it is the gold standard। Okay, under NHM free cataract surgery is being provided, but in 2017 the program was renamed as NPCB4, adding NPCBVI, adding visual impairment to full name। Okay, one more high yield point is that vitamin A supplementation, for prevention of childhood blindness। Okay, so let's have a quick revision। National Program for Control of Blindness launched in 1976, target was reduce blindness prevalence to 0.3%, okay, which was 1.4% at the time of launching। Then leading cause cataract, always asked, not trachoma anymore। Okay,
Then at district level, district blindness control society is there. Then cataract surgery, gold standard is IOL implantation, and free surgery at government hospitals is there with NHM integration. And NPCBVI added the visual impairment in 2017, and vitamin A supplementation for prevention of childhood blindness from the 9 months of age to 5 years of age as per WHO schedule. Okay, now very important thing, very important. Okay, NTCP plus COTPA, COTPA, frequently tested topics. Okay, NTCP stands for National Tobacco Control Program, launched in 2007 to 2008. Okay, India is the second largest producer and consumer of tobacco and its related products, and the legal backbone to control the consumption of tobacco is COTPA. Okay, this act was passed in 2003. There are various sections under COTPA, but frequently asked are only 4 sections. There are only 4 sections which are frequently asked. What are those 4 sections? Let's see. Section 4. What does the section 4 says? सुना होगा आप लोगों ने, पब्लिक एरिया में स्मोकिंग इज नॉट अलाउड. Smoking not allowed in public area. Then section 5 is there. What does section 5 say? No advertisement of tobacco products. Okay, then section 6A, remember section 6A, no sale of tobacco products to minors, 18 साल के नीचे को नहीं बेचना है. Then section 6B, okay, 100 मीटर्स के दायरे में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, स्कूल कॉलेजेस वगैरह कुछ भी, टोबैको प्रोडक्ट्स को नहीं सेल करना है. याद रहेगा? 4 सेक्शन, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6A एंड सेक्शन 6B. याद रहेगा? ओके. Remember, there is also one exam trap, but first we revise this. So, National Tobacco Control Program launched in 2007-8, COTPA, the legal backbone, the Cigarette and Other Tobacco Product Act 2003, COTPA Section 4, no smoking in public places, COTPA Section 5, no tobacco advertisement, Section 6A, no sale to minor less than 18 years of age, and Section 6B, no sale within 100 meter of educational institution. इंडिया का स्टेटस क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ग्लोबली. देर इज वन ऐप, एम सजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. मोबाइल बेस्ड टोबैको सजेशन सर्विसेज इज ऑल्सो देयर. एंड क्वाइट लाइन क्या है? आपको अगर नेशनल टोबैको की क्वाइट लाइन भी जारी की हुई है, 1800112356. अब एग्जाम ट्रैप की जो अपन बात कर रहे थे वो क्या है? COTPA sections are PYQ across all examination. Section 6B, no sale within 100 meter of school. एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर को पता है आप 4 सेक्शन पढ़ के आए हो, बट वो क्या करेगा? वो आपको घुमाएगा. वो 100 मीटर की जगह वहाँ पे 200 मीटर्स या 50 मीटर्स इस तरह से कंफ्यूज क्रिएट करता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने याद रखना है इस चीज़ को. सो सेक्शन 4, नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस. एग्जामिनर usually changes these points. Okay, now राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK. देखो यार, अब एक चीज यहां पे देखने की जरूरत है अपने को. इंडिया के अंदर में हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होने की वजह से या XYZ रीज़न कुछ भी आप मान लीजिए, उसकी वजह से
उनके डिफॉर्मिटीज़, उनका जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट वगैरह जो भी अपन डायग्नोस कर सकते हैं वो डायग्नोस नहीं होता, और वो उस डिफॉर्मिटी के साथ, उस इशू के साथ, उस प्रॉब्लम के साथ डिलीवर हो जाते हैं। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस लेकुना को आइडेंटिफाई करते हुए इस पॉपुलेशन को टारगेट किया अंडर द प्रोग्राम नेम RBSK। ओके, अब इसमें क्या होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल डिलेज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ठीक है, इन चीज़ों को टारगेट करते हैं। कब लॉन्च हुआ RBSK? 2013 में लॉन्च हुआ। क्या करता है, इट स्क्रीन्स ऑल चिल्ड्रेन 0 से लेकर के 18 ईयर्स ऑफ एज तक को, ठीक है, नॉट 0 to 5, नॉट 0 to 6, बट 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज। मोबाइल हेल्थ टीम कहाँ जाती है? आंगनवाड़ी सेंटर पर स्क्रीन करने के लिए। दे स्क्रीन द चाइल्ड, व्हाट वी कॉल 4Ds। ओके, 4Ds क्या क्या है? 4Ds क्या क्या है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज, ठीक है, और डेवलपमेंटल डिले। 4Ds याद रखनी है आपने। ओके, आ जाओ अपन देख लेते हैं। 4Ds covered 30 conditions across all 4 डोमेन। यूपीएससी CMS का डायरेक्ट क्वेश्चन था, कितनी बीमारियां, तो वही सब 30 चीजें हैं। ओके, डिफेक्ट एट बर्थ, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, डाउन सिंड्रोम, ETC, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी इसमें आता है। डेफिशिएंसीज किसकी? एनीमिया, विटामिन डी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, ठीक है। और डिजीज में क्या है? डेंटल, विजन, हियरिंग, स्किन प्रॉब्लम्स। डेवलपमेंटल डिले में मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज डिलेज, ऑटिज्म भी इसके अंदर में आता है। रेफरल सिस्टम क्या है? DEIC, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। ओके, ये इसका रेफरल हब है। ट्रीटमेंट क्या है? फ्री ट्रीटमेंट एट ऑल गवर्नमेंट फैसिलिटीज, याद रखना है आपने। ओके, इसमें जो एग्जाम ट्रैप है, एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है। एज बार में अपन ने डिस्कस किया 0 to 18 के लिए है RBSK, वहां पे आप ट्रैप करेंगे। 4Ds में, ठीक है, वो 4Ds याद रखनी है अपने को। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग we have to discuss is RKSK plus ICDS। अब देखो यार, RKSK दैट मीन्स कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, लॉन्च इन 2014। ओके, इसमें क्या है? एज ग्रुप क्या है? 10 to 19 ईयर्स। ये बात आपको ध्यान रखने की है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। WHO जो है किशोर एडोलसेंट किसको मानता है? वो कहता है कि यूथ का मतलब क्या हुआ WHO के अकॉर्डिंग? यूथ का मतलब होता है, देखो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ इसको, यूथ का मतलब होता है 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज, उसको यूथ माना जा रहा है WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन RKSK में क्या है? अपन 10 to 19 ईयर्स को लेते हैं। इसमें क्या क्या सर्विसेज अपन दे रहे हैं? 6 डोमेन्स के तहत, 6 डोमेन्स है इसमें। तो क्या क्या है? न्यूट्रिशन है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ओके, फिर इंजुरीज एंड वायलेंस, और वायलेंस में भी जेंडर बेस्ड आ जाएगा। ओके, जेंडर बेस्ड है। सब्सटेंस मिसयूज है, ओके, और
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ जाती हैं। तो की इंटरवेंशन क्या है इसमें? विफ्स, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, WIFS। ओके, इसमें क्या करना होता है? एवरी वीक आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स दी जाती हैं। ठीक है, कब दी जाती हैं? एवरी 6 मंथ्स। और दूसरा चीज क्या है? एवरी 6 मंथ्स पर, या बाई एनुअली कह लीजिए इसको। डीवॉर्मिंग, डीवॉर्मिंग भी की जाती है। 2 पीयर एजुकेटर ले लेते हैं अपन स्कूल से ही, जो इस प्रोग्राम को डिलीवर करते हैं। ठीक है, और AFHC का कॉन्सेप्ट है इसमें। व्हाट इज AFHC? एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। ये कहाँ होता है? ये CHC लेवल पे होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होता है। ठीक है, अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो एज बार में, जो कि है 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज का। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग यूथ वो 15 to 24 लेते हैं। आपने जो इंडिया के प्रोग्राम को जो अपन फॉलो कर रहे हैं वो है 10 to 19 ईयर्स का। ठीक है, INICET 2022 में पूछा था ये। नाउ अनदर थिंग इज ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विसेज, ग्रैंड मदर ऑफ ऑल चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। ओके, कब लॉन्च हुआ? 2 अक्टूबर 1975, गांधी जयंती, गांधी जयंती के दिन इसको लॉन्च किया गया था। भाई साहब FMG वालों, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये आपका। ओके, 2 अक्टूबर 1975। 6 सर्विसेज आंगनवाड़ी सेंटर पर डिलीवर की जाती है आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा। तो चलो यार, इसको अपन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, एज ग्रुप है 10 to 19, लॉन्च इन 2014। 6 डोमेन्स है, न्यूट्रिशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इंजरीज एंड वायलेंस है, सब्सटेंस मिसयूज है, और NCDs आती हैं इसके अंदर में। इसमें वीकली आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, जिसमें आयरन फॉलिक एसिड और एल्बेंडाजोल दिया जाता है बाई एनुअली, यानी कि एवरी 6 मंथ्स पर। और 2 पीयर एजुकेटर सेलेक्टेड पर स्कूल्स। और AFHC, एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, CHC लेवल पे होता है, उसका कॉन्सेप्ट है इसमें। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सुविधा सैनिटरी नैपकिन, 1 रुपये पर पैड, प्रधानमंत्री स्कीम है भाई साहब। ठीक है, ये याद रखनी है अपने को। उसके बाद अपन ने ICDS डिस्कस करा है। ICDS में अपने को ये ध्यान रखना है क्या क्या? लॉन्च इन 1975, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन। एंड चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, ये इसके टारगेट ऑडियंस हैं। सिर्फ 18 साल तक नहीं है, 18 साल तक उधर है किशोर वाला, और ये है 0 to 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन। कहाँ पर? आंगनवाड़ी सेंटर पर देंगे। कौन देगा? आंगनवाड़ी वर्कर देगा सर्विसेज। 6 सर्विसेज क्या क्या आती हैं? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ चेकअप है, रेफरल सर्विसेज है, प्री स्कूल एजुकेशन है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन है। 6 सर्विसेज है, याद कर लो, MTR है। ओके, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें हैं? तो भाई साहब 300 किलो कैलोरी, 8 से 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन बच्चों के लिए, और 500 किलो कैलोरी, 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रेग्नेंट वुमन और नर्सिंग मदर के लिए। ओके, माल न्यूट्रिशन क्या है? SAM, ट्रीटेड एट न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। और इसमें एक और चीज़ है कि बच्चे को उसी सेंटर पे रहना होता है। कितने दिन रहना होता है? 84 डेज का स्टे है। एक और चीज़ है पोषण अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्च इन 2018, कन्वर्जेंस मिशन फॉर न्यूट्रिशन, PM पोषण, मिड डे मील, याद रखना। ओके, चलो यार, अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है NIDDCP, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। तो बिना देरी के फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं इसको। 1962 में NGEP नाम रखा गया था, रीस्ट्रक्चर किया गया 1992 में, जब इसका नाम ये पड़ा जो अपन पढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन, कॉमन सॉल्ट को आयोडाइज सॉल्ट से बदल देना है। फोर्टिफिकेशन करते हैं, आयोडीन डालते हैं और उसको रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर अपने पास में गोइटर, क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, स्टिल बर्थ, रिप्रोडक्टिव फेलियर, ये बहुत सारे केसेस थे, और इन सब की एक ही जड़ थी, आयोडीन की डेफिशिएंसी। नमक हर खाने में बढ़ता है, हर खाने में पड़ता है।
तो उसको आपने फोर्टिफाइड कर दिया आयोडीन से, आयोडीन की मात्रा जितनी रिक्वायर्ड थी पहुंच गई। मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं भाई साहब? मॉनिटरिंग कर रहे हैं यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन और सॉल्ट आयोडीन कंटेंट के थ्रू। रीसर्वे करना है, कब करना है? एवरी 5 ईयर में करना है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस कौन सी है भाई साहब? टारगेट ऑडियंस, अपना टारगेट क्या है? यूरिनरी आयोडीन मोर देन 100 माइक्रोग्राम पर लीटर एडिक्वेट है, लेस देन 50 में सीवियर कंडीशन पहुंच जाएगी। और iodine in salt, very important, don't get confused, this is your exam trap where examiner tries to trap you, is more than 15 ppm at consumer level and more than 30 ppm at factory level. So iodine in salt 30 ppm at factory level and 15 ppm at consumer level. The number drop in transit, UPSC CMS directly ask the value. दोनों में कंफ्यूज मत होना, सीएमएस वालों एग्जाम आ रहा है, ध्यान दे लो। तो चलो एक ब्रीफ कर लेते हैं अपन। विच कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट इज यूज्ड अंडर NPCDCS फॉर सर्वाइकल कैंसर? यस, VIA, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, पैप्समियर नहीं भैया। NPCB was launched in year 1976 और अंडर RBSK 4D stands for very हलवा क्वेश्चन, डिटेक्ट डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीज, डेवलपमेंटल डिले। और कितने कंडीशंस कवर करते हैं? 30 कंडीशंस कवर करते हैं। RKS ग्रुप कौन से एज ग्रुप को कर रहा है? तो RKS के ग्रुप में आते हैं 10 से 19 साल के नए नए छोरे, मतलब बच्चे, छोरियां भी आती हैं। नीट PG में क्या पूछा गया था? ICDS वाज लॉन्च इन विच डेट? गांधी जयंती 1975, गांधी जयंती 1975 में। और विच सेक्शन ऑफ कोटपा प्रोहिबिट सेल ऑफ टोबैको टू माइनर्स? सेक्शन 6A। बेलारी मॉडल एसोसिएटेड विद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आप बता सकते हैं अब? NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और निश्चय पोषण योजना प्रोवाइड्स नेशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ रुपीज कितना? 500 पर मंथ टू TB पेशेंट अंडर NTEP। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन था, पार्ट 1 में डिस्कस किया था, बट देखना था, पोषण अभियान में भी इसमें भी आता है। तो आई होप आपने उसको और अभी जो अपन ने डिस्कस किया इसको अच्छे से कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट बनाया है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन एक ही जगह पर है, इसमें एग्जामिनर ट्रैप भी मैंने इंक्लूड किए हैं, आप देख सकते हैं निचले हिस्से पर। ले लिया? देखो, नाउ यू हैव द कंप्लीट मैप ऑफ ऑल द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और पार्ट 1 को देखिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्कोरिंग। हेयर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेयर यू हैव ऑल द मेन न्यूमोनिक्स, सारे न्यूमोनिक्स एक प्लेस पे रख दिए हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। और अगर अभी तक आपने मेरी एपिडेमोलॉजी की मास्टर क्लास नहीं देखी है तो भाई साहब किस बात का वेट है, फटाफट से जाइए और 20 मिनट के अंदर में 3 घंटे की बोरियत तो ख़त्म करके आइए। एग्ज़ाम के पहले फास्ट फॉरवर्ड मोड पर चलाओ, देखो और जाके सीधा सीधा स्कोर करो। ओके, सो दिस इज़ योर गाइड Dr. Chetan Sharma. Thank you for connecting with us. PSM Pulse signing off.